Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up important articles of December of February 10th, 2024. Starting with the first one, Meet HAPS, India's very own UAV that can fly 20 kilometers high and float for months. National Aerospace Laboratory in Bengaluru have completed the first test of solar powered pseudo satellite. Why it is called pseudo satellite? Because it works as a satellite, but it is not a satellite because it is not in the LEO orbit या फिर GEO orbit. High altitude can fly at least 80 to 18 to 20 kilometers from the ground. तो बहुत नीचे है as compared to original satellite. But it is almost double the height attained by commercial airplane. कहाँ यूज किया जा सकता है? सर्वेलेंस के लिए, स्पाइंग, monitoring capability of the border areas. That is why it is solar powered. HAPS, battery powered UAV, can remain in air. Other countries also have that kind of speciality. For example, China, South Korea, UK are some of the developed countries. Full form of HAP, kindly search that. HAP can be useful in disaster situation to establish mobile communication network in remote areas. Manufacturing will be done very easily as compared to normal UAV or satellite. Cost of operating HAP is several times lower than that of satellite. That is usually placed in the LEO orbit, 200 to 600 kilometers from the Earth. That is why it is called pseudo satellite. High altitude pseudo satellite, HAPS. On death row, confirmed one. Second year when SC didn't confirm any death sentence. In the world, many of the countries don't approve the death penalty, but in some cases, big countries like China, India, even USA have retained the death penalty provision as compared to EU, Russia, Brazil, Argentina, etc. They have said that there is also a dignity and liberty of the prisoner, even if they have committed the crime. But in India, US, and China, they have maintained that death penalty is a deterrent to the heinous crime committed by them. For example, brutal rape, gang war, organized crime, murder, brutal murder, heinous murder, terrorism, which has killed many people. So, ये heinous crime. The annual death penalty was prepared by the Project 39 Criminal Justice Program, National Law University. But the cases, prisoner on the death sentence, it is increasing very slowly. ज़्यादा नहीं, 561 अभी. More than 55, half of these 120 were homicidal or rape cases. तो sexual offenses form the majority of the death penalty case as a trial court. तो इसमें मोस्टली जो होंगे पॉक्सो रिलेटेड होंगे. एक और इंपॉर्टेंट है विथ रिगार्डिंग टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. Commutation, it's a remission, the commutation, pardoning. Pardoning is removing. You have been pardoned. तो उनका सेंटेंस जीरो. तो कम्यूटेशन मतलब होता है इट विल बी चेंज्ड इनटू अ लेसर सेंटेंस. He who rules the sea, where the global power axis shifting to the Indo-Pacific region, Indian Ocean and Pacific Ocean, India is assuming a greater prominent role in maritime dominance.
अब सी का इम्पोर्टेंस पहले भी था हमारे एंशियंट ट्रेडिशन में, राइट फ्रॉम द चोलास, विजयनगर एम्पायर, उड़ीसा, गजपतीस, बट after the Mughals, after, during the Mughals period, Sultanate period, the focus was more on the landed continental sphere because the invasion took place from the northwest region. But after arrival of the European traders into India, right from Portuguese to Dutch, Danish, English, and French, the importance of the sea became prominent. पहले भी सी थे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन पल्लवास, आंध्रस, चोलास और सी ट्रेडर मणिक्रमम चेट्टीज एंड नाना देसीस, ये सी ट्रेडर थे। एक तरह से ये फंड करते थे ट्रेडिंग इन अ डिफरेंट डिस्टेंट रीजन, राइट फ्रॉम द श्रीविजया एम्पायर। श्रीविजया कहाँ पे? मलेशिया, इंडोनेशिया। तो इम्पोर्टेंट वर्ड है मणिग्रम चट्टीज एंड नाना देसी, इट शुड बी रिटन। मॉडर्न एम्पायर में भी इंपॉर्टेंस था। बोर्डिंग ऑफ शिपिंग वाज वन ऑफ द सिक्स इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। फाहियन इज ए ट्रैवल ड्यूरिंग द 415 एडी। 415 एडी के समय में किस समय में? गुप्ताज एम्पायर, चंद्रगुप्ता टू के समय में। ही टुक द शिप फ्रॉम साइलोन श्रीलंका टू श्रीविजय इंडोनेशिया। तो जमोरिन्स केरला, जो साउथ में इन द मालाबार रीजन, दे वर आल्सो बिल्डिंग द नेवी। Even Chhatrapati Shivaji Maharaj built an important navy to deal with the Portuguese threat and European and also the Mughal threat in the sea. लेकिन जो ब्रिटिशर थे, दे वर वेल नोन सीफेयर, दे हैड अ ब्लू वाटर प्रेजेंस। तो ब्लू वाटर मतलब होता है कि यू हैव द कैपेबिलिटी टू इन्फोर्स लॉ एंड ऑर्डर, टू इन्फोर्स रूल्स इन ऑल ओवर द ग्लोब। तो पहला ब्लू वाटर नेवी ब्रिटिश इन 18 सेंचुरी। उसके बाद फिर बाकी सब कंट्री आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएस। इंडिया अभी ब्लू वाटर नेवी नहीं है। चाइना होने जा रहा है ब्लू वाटर नेवी। देन रिगार्डिंग द इंडियन ओशन रीजन, इंडिया हैज बीन इंक्रीजिंग द मैरिटाइम ट्रैफिक, मैरिटाइम डोमेन, फॉर एग्जाम्पल increasing its relationship between the IOR region, Indian Ocean region, right from the exercise with the Madagascar, Seychelles, Maldives, hydrographic or geographic research body with Maldives, exercise with different countries, building of bases in Mauritius and Djibouti, etc. Then Indian Naval Symposium, which talks about anti-piracy mechanism in the Indian Ocean region. After that, use of the bases, for example, Diego Garcia of the US and French in Indo-Pacific region. उसी से related PT fact, Indian Ocean Rim Association IORA was formed in 1997 with the insistence of Nelson Mandela of South Africa. लेकिन उसके बाद there was a rise of the interest of the European countries, US, Britain, France, Germany, etc. for the Indo-Pacific region. There was a shift from the Atlantic no, to the Indo-Pacific right now. उसके लिए एक वर्ड भी है एक, which is talking about the rule-based order in Indo-Pacific region. AUKUS treaty between the Australia, UK, and US, which is talking about nuclear submarine to create a deterrent to the Chinese submarine in the Indo-Pacific region. So different step लिया जा रहा। Further और भी जगह पर there are collaboration with the countries, for example in the natural disaster, supply chain disruption, trade related security challenges, etc. Water bill settlement scheme soon many benefit 40% of the user. Water Minister Atishi on Friday have announced fresh one-time settlement OTS scheme for revisiting faulty water bill of Delhi Jal Board.
Water bill is important because it creates a compliance for the user to reduce consumption of water and use water judiciously. Water meter, electric meter तभी important होता है. It also creates a revenue surplus for the department, local bodies, municipalities, municipal corporation. But inflated कहीं कहीं पर issue है कि inflated water bill दिखाया जाता है and it is anti citizen centric measures. That is why one time settlement issue किया गया by the water minister TC. It is mandatory for the consumer to have a functional water meter. Those who have faulty water meter will be replaced to get their correct bill. Scientific progress possible only with harmony. Kerala CM have said. Why it is only with harmony? Because with the use of scientific process, there is objectivity in decision making, rational mind is applied, and all the dogmas, all the traditional aspect of the society, it gets checked, monitored, and also it gets reviewed by the empirical process, empirical evidence process. That is why हार्मनी के साथ ही आप जा सकते हो. ऐसे आर्टिकल 51 जो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू फॉस्टर साइंटिफिक एंड क्यूरियोसिटी एंड रैशनल थिंकिंग. Kerala Science Congress. It is a platform organized by the Kerala State Council for Science, Technology, and Environment. It calls for the vigilance against such tendency, which promotes division in the society, which promotes pseudoscience in the society. इसलिए बोला जाता है कि ethos of the scientific inquiry cannot flourish in society marred by hatred and prejudice. जैसे जर्मनी में they were increased use of racial science, social Darwinism इसको बोलते हैं. That create a generation of principle of eugenic, creating a ideal body, creating an ideal race. That was a bedrock of the Nazi foundation, Nazism. तो इसलिए सूडो साइंस को प्रमोट के जो करते हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं, उनको एम्पेरिकल एविडेंस ऑब्जेक्टिविटी से उनको डिस्क्रेडिट करना चाहिए सोसाइटी के अंदर. He also said that in scientific pursuit with ethical consideration, for example, use of CRISPR-9, it should be used for the treatment of cancer, but it cannot be used for the eugenic purposes. Designer baby. अब बेबी को तेज बनाना है, आंख उसको ब्लू चाहिए, व्हाइट स्किन चाहिए, तो उसके खिलाफ नहीं कर सकते. एथिकल कंसिडरेशन हिसाब से चलना चाहिए. सेम विद द केस ऑफ जीएम क्रॉप. Policymaker must continue to keep focus on showing price gain. MPC. Fiscal policy, it is done by the central government, or monetary policy, that is increasing or decreasing a repo rate, reverse repo, bank rate, open market operation. It is been done by the RBI to maintain the equilibrium in the liquidity in the market to achieve the targeted inflation within the band of 4 ± 2%. तो अभी क्या हुआ कि 5:1 मेजोरिटी से एमपीसी ने अपील्ड किया कि जो भी रेपो रेट है वैसे ही रहना चाहिए. There has to be no change because adequate inflation is important for the job creation in the market, employment opportunity. The repo rate अभी unchanged है 6.5% for the 6th straight meeting. अगर ज्यादा रेपो रेट बढ़ाएंगे there will be less liquidity, कम करेंगे तो there will be more liquidity. और इन्फ्लेशन जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है इट विल क्रिएट a huge impact. तो अभी 6.5 है क्योंकि इन्फ्लेशन इट इज अराउंड 4.7, 4.87, 5.9, तो बैंड के अराउंड ही इसलिए. तो हेडलाइन और कोर में ये फर्क है कि हेडलाइन इज टोटल इन्फ्लेशन, कोर मतलब
कि हेडलाइन में से आप फूड और फ्यूल हटा दीजिए। फूड और फूड ऑन फ्यूल, इट इज वेरी वोलेटाइल। दैट इज वाई जो हेडलाइन होते हैं वो ज्यादा इन्फ्लेशन सर्च दिखाते हैं एज कम्पेयर टू कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स। इंडिया कैन परचेज natural gas at below market price. Natural gas, India mostly buys natural gas LNG from Qatar, 42%. और India is heavily dependent on the natural gas from the Middle East, West Asia. So that is why India is calling for diversification of the fuel sources to making the cleaner natural gas available to consumer. The national gas grid, it is talking about the expansion and mobility of the pipe gas connection to the homes. It will increase the demand. For the adoption of the biofuel policy 2018, talking about the ethanol blending and increasing of biofuel using first generation, second generation, third generation, fourth generation biofuel. बायोलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, अगर इसको दो लाइन में कहा जाए, व्हाट इज दैट? हर एक कंट्री चाहती है कि उनकी जो कंपनीज है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है, इट शुड बी सिक्योर्ड इन देन जो दो कंट्री के बीच में होते हैं बायोलैटरल। मल्टीलैटरल बहुत सारे कंट्री होते हैं, तो बायोलैटरल तो दो कंट्री ए और बी। तो बी वाले जो कंट्री है वो चाहेंगे कि उनके जो कंपनीज और उनके जो इन्वेस्टमेंट इन ए शुड बी सिक्योर्ड इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी में भी। तभी इनका जो ट्रीटी इन्वेस्टमेंट है वो एक तरह से सिक्योर है लॉन्ग टर्म में। वैसे ए भी चाहेंगे, इसलिए बायोलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज किए जाते हैं। इट विल अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। क्यों? क्योंकि ऐसा ट्रीटी में साइन किया जाता है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स सेशन नहीं करोगे। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आज से अगर टैक्सेशन इंक्रीज करो तो मेरे कंपनी पे नहीं लगे, क्योंकि मेरे कंपनी पहले से थे बिफोर पासिंग द लॉ। दूसरा चीज कि इट विल क्रिएट अ सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द कंपनीज टू फ्लरिश, इन्वेस्टमेंट टू फ्लरिश। थर्ड, इट विल क्रिएट अ ब्रांड वैल्यू ऑन द कंट्री, क्योंकि वो अगर सिक्योर करेंगे एक कंट्री के लिए, तो हो सकता है कि जो CDEF जो कंट्रीज है वो भी चाहें कि मैं भी बायोलैटरल ट्रीटी साइन करूं वो कंट्री के साथ, उस कंट्री के साथ, ए के साथ। तो अब देखते हैं बायोलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज विद दिस ट्रेड पार्टनर to boost the inflow of the foreign direct investment. It was adoption of the model BIT 2016 agreement between two countries for the reciprocal promotion and protection of investment in each other territory by individual and company. उसी का एग्जाम्पल है। तो bilateral investment treaties is an important tool for increasing the trade between the two countries. और इसके साथ साथ जब FTA साइन होता है तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मिल करके फिर बाद में एकटा और सीपा होता है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो जब भी रिलेशनशिप बढ़ता है दो कंट्री के बीच में, तो देयर इज अपवर्ड, जब कभी भी रिलेशनशिप बढ़ता है तो हमेशा देखो कि BIT साइन होगा। तो फर्स्ट BIT वाज साइंड बाय द इंडिया विथ यूके 1994। लेकिन सबसे बड़ा इशू हुआ था कैन एनर्जी। अब क्यों हुआ था? क्योंकि इंडिया ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन पॉलिसी यूज किया 2012-13 उस समय। और उसमें बोला कि जो कैन एनर्जी कॉर्पोरेशन ब्रिटिश ऑयल गैस कंपनी, इट हैड टू पे $13 billion एज टैक्सेशन। उसको अब टैक्सेशन बाद में था और पहले से साइन हो चुका था। तब कैन एनर्जी ने इंडिया के अगेंस्ट में अपील किया एंड इट हैड वन अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट $1.2 billion अवार्ड अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट इन इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट। इसके बाद से इंडिया का जो ब्रांड वैल्यू है थोड़ा सा उसके ऊपर में क्वेश्चन हुआ रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। लेकिन तब भी
बहुत सारे कंट्री के साथ साइन हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल दिस लेड टू अडॉप्शन 2016 मॉडल ऑफ बीआईटी और सिक्योर करने के लिए, जो पहले के थे उससे ज्यादा सिक्योर करने के लिए किया गया। रिजल्टिंग इन गवर्नमेंट ट्रीटीज terminating 68 for the 74 treaties it has executed until 2015, और वापस से रीनेगोशिएट करने बात है। तो ओवरऑल बात हो रही है कि 2016 मॉडल इज एन एंडेवर टू कंक्लूड द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूके। राइट नाउ देयर इज नेगोशिएशन गोइंग ऑन with regarding the UK on the free trade agreement। तो उसमें bilateral investment treaties can play important role। अब इसमें बात किया गया कि 2021 में कि जो मॉडल 2016 बीआईटी ट्रीटी है उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री आर्बिट्रेशन कंसल्टेशन नेगोशिएशन टाइमली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। नेगोशिएशन में समय लगता है, दोनों का कंसर्न रहता है, वो पूरा नहीं हो पाता है, तो दे शुड बी टाइमली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। डेवलपमेंट ऑफ द लोकल एक्सपर्टीज दोनों कंट्रीज के अंदर में, सो दैट द इशू कैन बी रिजॉल्व। अ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करना चाहिए ऑन द ट्रीटी। इंडिया का अगर ईज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट किया जाए तो बहुत पीछे है, 163 आउट ऑफ 190 कंट्रीज है। मतलब बात तो कर लेते हैं कि साथ में काम कर लेंगे, लेकिन इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा नहीं कर पाते। तो उसमें बोला जा रहा है कि आप अडॉप्ट करिए हायर और बेटर प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द वर्ल्ड, तभी जाकर आपका $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है, आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा विद रिगार्डिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए तो इट शुड बी कंप्लायंस, आपको फॉलो करना चाहिए। सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट। तो वी हैव डन बीआईटी, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। तो पेटीएम पेमेंट बैंक with regarding to KYC norms or lending purposes by the Paytm Post Payment Bank। तो ये पहला केस नहीं है, इसके पहले 2017 से इट वाज पेनलाइज्ड एटलीस्ट 5 टाइम्स बाय आरबीआई। तो ये दिखाता है कि अनटिल अनलेस पेनलाइज में प्रॉब्लम एक होता है कि इफ द पेटीएम बैंक इज अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर और पेनल्टी सिर्फ 5 मिलियन लगता है, तो उनको लगता है कि फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है प्रिंसिपल रूल्स, आप पैसा दो और चलते रहेगा। इसलिए एट लास्ट स्टेप 5 टाइम्स के बाद आरबीआई हैव टेकन अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस। लिखा है नो फियर नो ग्रीड नो एंटरटेनमेंट, इंडियाज मोस्ट सिंसियर बैंक इज हियर। दिस इज हाउ पेटीएम पेमेंट बैंक मार्केट्स इटसेल्फ। लेकिन उन्होंने कितने सारे सर्विसेज को विदाउट कंप्लायंस यूज किया आरबीआई के पेनल्टी के बावजूद भी। इट इज हैज बीन बार फ्रॉम ऑफरिंग सर्विसेज लाइक फास्टैग। फास्टैग नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मतलब होता है कि आपके पास एक कार्ड है तो कहीं भी इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन है आप जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मेट्रो, बस सर्विसेज, गवर्नमेंट बस सर्विस एक्सेट्रा। तो एनसीएमसी बोलते हैं। 3.25 करोड़ यूपीआई क्यू कार्ड उनके पास है अभी हाल फिलहाल में। एलिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन हैज आल्सो बीन मेड अगेंस्ट द कंपनी। तो नॉन कंप्लायंस, परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस, बार बार by months, at times years of bilateral engagement। तो सिर्फ 5.4 करोड़ पेनल्टी लगा था उनके ऊपर में फॉर द ब्रीच ऑफ द केवाईसी गाइडलाइन। तो सोचे हुए कि 5.4 है दे देते हैं, बाकी इतने का पैसा तो कमाई। तो अल्टीमेटली स्टेट हैज टू इंश्योर दैट द मार्केट प्रैक्टिसेस वर्क्स वेरी एफिशिएंटली और इन अ वेरी नॉन बायस वे। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसी के लिए आए थे, और आरबीआई जैसे रेगुलेट करते हैं बैंकिंग सेक्टर, तो उनका भी ड्यूटी बनता है। तो उन्होंने कर्व किया। नाउ द पेटीएम बैंक हैज बीन बार्ड फ्रॉम ऑफरिंग मोस्ट ऑफ द सर्विसेज। हरियाणा स्टेट सर्विस में क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया का हाईएस्ट एक्सपोर्ट क्या है, तो इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम एंड जेम्स। 2022 के पेपर में था। तो रिगार्डिंग
they export to the Russia. The machines, auto part, steel, aluminum, internal IC engine, pumps are on rise with export to Russia. Russia has been removed from the SWIFT. SWIFT एक तरह से WhatsApp ग्रुप है to exchange the information on the banking services by the big bank of the world. उसी से एक आसानी होता है हर एक वर्ल्ड में जो भी बैंक है कि कोई एक इंसान है वो अगर एक बैंक में अप्लाई करते लोन दूसरे लोन में अप्लाई करें तो उनको पता चल जाएगा कि ये आदमी वहां से भी लोन लिया था यहाँ से भी लोन ले रहा है तो ये स्विफ्ट के थ्रू ही होता है तो रशिया को निकाल दिया गया तो रशिया एंड चाइना दे हैव क्रिएटेड देयर ओन मैकेनिज्म फॉर द पेमेंट सिस्टम इन रूबल्स एंड यूएन रशिया ट्रेड विद चाइना हैज रॉकेटेड $200 billion 95% of the trade is taking place in Russia, ruble and Chinese yuan. तो स्विफ्ट तभी काम कर सकता है जब इसमें मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड इट इज अंडर यूरो एंड डॉलर तो इंडिया का देखा जाता है तो इंडिया टोटल एक्सपोर्ट टू रशिया हैज सर्ज्ड $4 billion mark nearly double to 1.32 to from 680 million. और भी जगह में बात हो रहा है कि विच इंडिया कैन यूज फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेडिसिनल मेडिकल व्हीकल एग्रीकल्चर एक्सेट्रा और इंपोर्ट किसमें बढ़ा है तो मोस्टली इन द पेट्रोलियम सेक्टर रशिया इज नो सेकेंड और थर्ड पहले फर्स्ट हो चुके थे वापस से सेकेंड थर्ड में इराक फर्स्ट में आते हैं तो challenges in the trade shortage of the containers shipping lanes उसमें क्राइसिस आता है रेड सी में which Houthi had attacked on the merchant navy उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस and Russia has to export its product through the far east Vladivostok या फिर फ्रॉम द रेड सी रीजन जो अभी अनसर्टेनिटी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण प्रॉब्लम होता है स्विफ्ट में उनको निकाल दिया गया तो पेमेंट मैकेनिज्म कैश में होना चाहिए रूबल रुपीज में उसमें चैलेंज आता है तो ये बढ़ा तभी सकते हैं कि व्हेन देयर इज अ इंटरनेशनल ऑफ द रुपी मोर एंड मोर कंट्री अडॉप्ट करेंगे तो रशिया भी रुपीज में फिर ट्रेड कर जैसे युआन में करते पॉलीगैमी इन इंडिया पॉलीगैमी मतलब when men have married more than once uniform civil code bill that has been passed in the legislative assembly in Uttarakhand it talks about uniformity in personal law like marriage divorce inheritance across the community except tribal तो ऐसा बात हो रहा है दो चीज जो आई विल हाईलाइट कि इंडिया में यूसीसी जो आएंगे वो कैसे होंगे तो एक अच्छा आर्टिकल था जो पढ़े थे इट इज टॉकिंग अबाउट हर एक स्टेट चाहेंगे यूसीसी लाने का it will be challenged in the Supreme Court. Then afterwards, Supreme Court will direct the center to make a model UCC code to surpass the state code. उसके थ्रू फिर यूसीसी आएंगे से बाय द सेंटर अब यूसीसी जब सेंटर के थ्रू आएंगे तो दो चीज में रहेगा इट विल हैव द प्रोविजन दैट इज एक्सक्लूडिंग द ट्राइबल्स बाकी हिंदू मुस्लिम बुद्ध बौद्ध जैन पारसी क्रिश्चियन सब इंक्लूड रहेंगे इन द यूसीसी लेकिन ट्राइबल नहीं रहेंगे ट्राइबल के लिए अगला 20 years 25 years डाउन द लाइन उनको एक बफर दिया जाए कि आप धीरे धीरे विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी आपके जो रिफॉर्म्स है उसमें चेंजेस किया जाएगा और 6 शेड्यूल के अंदर में भी लोकल चेंजेस खुद कर सकते हैं तो देयर विल बी अ बफर गिवन टू ट्राइबल्स तो एक ये आएगा दूसरे पहले चीज आएंगे कि देयर विल बी यूनिफॉर्मिटी इन द पर्सनल ये ज्यादा अडॉप्ट किया जा सकता है लिमिटेशन ऑफ द डेटा है अभी रिगार्डिंग द पॉलीगैमी तो लास्ट गवर्नमेंट स्टडी 1974 में हुआ था जिसमें बोला गया था कि बुद्धिस्ट जैन हिंदूज हैड हायर रेट ऑफ पॉलीगैमी देन मुस्लिम एक मिसकंसेप्शन है कि मुस्लिम में पॉलीगैमी ज्यादा होते हैं लेकिन 1974 में लास्ट जो किया गया सर्वे वहां पर बुद्धिस्ट जैन और हिंदूज परसेंटेज वाइज ज्यादा थे तो NFHS सर्वे इट इज डन एवरी 5 years जैसे 3 के 5 और 6 में हुए थे 4 15 16
और जो NFHS 5 है, इट इज इन 1921। तो NHFSS सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे। इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द पॉपुलेशन, चाइल्ड मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी, अंडर न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग से लेकर के जो भी हेल्थ से, फैमिली से और हेल्थ से जो भी रिलेटेड होगा वो करते सर्वे। डेटा भी उनके पास ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू बाकी सर्वे। तो इसको कोट करते हैं। तो करेंटली इंडिया में 0.54 पॉपुलेशन, जो प्रेडिक्शन है पॉलीगैमस पॉपुलेशन। हिंदूज में 0.45, मुस्लिम में 0.90, टोटल पॉपुलेशन के। 1.06 क्रिश्चियन में और सिख में 0.3 में। तो टेलर स्विफ्ट से बस पता चला, टेलर स्विफ्ट बिकेम द फर्स्ट ब्रांड, $1 बिलियन इनको मिला है। और स्विफ्टीज, और उन एक तरह से उनका रिकॉर्ड रहता है, वो हर जगह जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि इसको बोलते हैं वर्च्यू सिंगलिंग, कि वो बात करती है कि वी हैव टू सेव द प्लैनेट, वी हैव टू टॉक अबाउट द ग्रीन एमिशन, वी हैव टू adhere टू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉप 28, 27, पैरिस क्लाइमेट चेंज, लेकिन खुद प्राइवेट जेट यूज किया जाता है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉल्यूटर इन द वर्ल्ड। इट emits about 2 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी आवर। तो बोला जाता है कि एक एस्टिमेट है कि टोटल CO2 प्रोड्यूस बाय सेलिब्रिटी एंड बिलियनर ओनली बाय द प्राइवेट जेट इज roughly 3,376 ton each in 2022. World worst CO2 emitter. It is an example of how rich and powerful disproportionately contribute to CO2 emission. They only talk about कि कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहिए बाकी लोग के लिए, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन खुद फॉलो नहीं करते। यूपी गवर्नमेंट टेबल्स बिल टू रिड्यूस लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त टर्म्स। 2013 में आया था लोकायुक्त एक्ट आफ्टर द एंटी करप्शन प्रोटेस्ट इन 2013। तो हर एक स्टेट के अंदर में लोकायुक्त और उपायुक्त किया जाता है। इट इज एंटी करप्शन ओम्बड्समैन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दे डू नॉट हैव अ डेडिकेटेड कैडर। दे रिलाई मोस्टली ऑन द CBI एंड CBC फॉर द इनपुट। और CBI के पास अपने कैडर नहीं है। दे मोस्टली रिलाई ऑन IPS ऑफिसर, IRS ऑफिसर एंड डेपुटेशन, स्टाफ डेपुटेशन फ्रॉम दे। वो IB ऐसे अलग से एग्जाम नहीं होता है, ना कि रॉग ऐसे अलग से एग्जाम होता है, RAS कैडर या IB कैडर। तो जब डिपेंडेंसी बढ़ता है और खुद IPS भी, उनका भी ट्रांसफर होता है बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो घूम फिर करके इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम इन कंप्लायंस। और ट्रांसपेरेंसी का इशू है। सर्टेन अथॉरिटी इन्वेस्टमेंट एलिगेशन अगेंस्ट द मिनिस्टर, लेजिस्लेटर एंड द पब्लिक सर्वेंट केसेस, ये बात होता है, इस पे काम करते हैं। द टेन्योर वाज इंक्रीज टू 8 years अंडर द उत्तर प्रदेश लोकायुक्त उपालोकायुक्त एक्ट 2012 ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस। लेकिन सीट खाली रहते हैं, टाइमली अपॉइंटमेंट नहीं होता है, स्टाफ अंडर स्टाफ्ड है। दूसरे की इनका जो परव्यू है, उनका दायरा है, वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कम्पेयर टू बाकी सब इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल NCSC, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो it was found for due consideration that current tenure of 8 years of the Lokayut and Upayukt is excessive from the point of view of the physical and mental health जो लोग हैं वहां पर। तो इसलिए जो लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 इट प्रोवाइड्स फॉर टेन्योर फॉर लोकपाल ऑफ 5 years और एज ऑफ 70 विच एवर इज अर्लियर। तो इसलिए स्लाइड चेंज करना चाहिए। राज्यसभा passes bill to add Pahadis, Valmikis to SC/ST list in Jammu and Kashmir। पहाड़ी एथनिक ग्रुप, तो ओवरऑल देखा जाता है तो state don't have any power. It can only recommend to the parliament and parliament has the power to amend the constitution और उसमें ऐड किया जा सकता है।
The Koli community, SC list, Padarik tribe, Gadda Brahmin, etc. Gujjar, Bakrewal, and Gaddi communities. US China special warship in the Indian Ocean dominate IOC conference. IOC conference 1987 में हुआ था, talking about the free trade, rule based order in the Indian Ocean region. It talks about the regional cooperation with the littoral state. लेकिन over the years there has been increased instability, no longer credible justification justify the change of stand. For example, Chinese interference, Chinese presence in the region, docking of the research vessel in Maldives, Sri Lanka, etc. for spying purposes. It creates a challenge in the regional sphere. Chinese unilateral stand in the South China Sea. It creates the challenge for freedom of navigation oversight, disregarding the international negotiation regime like UN clause. The UN clause, important body, which talks about the monitoring and the setting of the standard for the sea beyond the exclusive economic zone, including me. तो डॉकयार्ड का बात करें, स्पाइंग शिप कोलंबो हमन टोटा पोर्ट, चाइनीज वॉरशिप प्लान्स डॉक इन मेल थ्रू रूटीन पोर्ट कॉल. तो इंडिया बात करते हैं कि ग्रेट पावर rivalry इज गोइंग ऑन इन द रीजन which is a concern for the small countries. Kindly share the link.